ਵੀ ਸਰ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੈ ਕੀ। ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰਨ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ which actually build your body. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੱਜਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਲੈਕਸ ਕਲਾਸਿਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਵਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸੱਤੂ ਬਾਰੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੈ ਕੀ। देखो, एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो तुसी एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स की गल करदे ना, सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेरॉयड्स। एक जेड़ा हुंदा एनाबॉलिक एंड अदर इज कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक स्टेरॉयड वो हो गया जेड़ा थानू बिल्ड अप करता है, ते कैटाबॉलिक स्टेरॉयड इज जेड़ा थानू किते ना किते तोड़दा है। तोड़न दा मतलब ये हुंदा कि जिवें असीं बीमारी दे विच कई वार असीं स्टेरॉयड दिंदे आ, दे आर कोर्टिकोस्टेरॉयड्स इन नेचर। ये थोड़ी इन्फेक्शन नू किल कर देंदे ना। एंड समथिंग which when we talk about body building world, the body building world ਦੇ ਵਿੱਚ we all talk about anabolic steroids and these are basically testosterone ਦੇ variants ਨੇ। So those are the steroids which actually bring about the hypertrophy of your muscle cells. So there are basically Guri, there are two type of steroids as I've told you, but ਤੁਸੀਂ I think body building world ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ there are these are called anabolic steroids which actually build your body. Okay. ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 올림픽 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਐਨਾਬੋਲਿਕਸ? देखो, अगेन मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की गल करांगा बिकॉज आई थिंक यू आर मोर आस्किंग मी अबाउट द बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड एंड बिकॉज ये चीज ज्यादा अब्यूज ही हो रहा है। कहने ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਸੀਗੇ ਬਿਫੋਰ 1950s, तो they were very much present in the world, but ਇਹ ਪਹਿਲੇ रूस रशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਏਰਾ ਪ੍ਰੀ 1950, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ एक्सपेरिमेंट्स करते सके अपनी लेबोरेटरीज के बीच में वो, ताकि वो कुछ ऐसी चीज पेश कर सकें जिससे वो दुश्मन के ऊपर हावी हो सकें। तो कहीं ना कहीं उनकी अंडरग्राउंड वर्ल्ड या अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज के बीच में भी ये एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, जहाँ पे उन्होंने ये टेस्टोस्टेरोन का एक जो था ये इन्होंने इजाद किया था। इनके डॉक्टर थे, डॉक्टर एडोल्फ वॉज द डॉक्टर जो इन्होंने एम्प्लॉय किए थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने टेस्टोस्टेरोन का पहली बार इजाद किया था अपनी लैब में। बेसिकली गुरी ये स्टेरॉइड्स उन्होंने शुरू किए थे कि अपनी आर्मी को दे सकें और आर्मी को दे के वो उनको और मस्कुलर स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि वो एक इनविंसिबल, एडोल्फ हिटलर का ड्रीम था कि वो इनविंसिबल आर्मी तैयार करना चाहते थे जाके जो पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो सके और जिनको कोई मार ना सके। तो कहीं ना कहीं तभी ये टेस्टोस्टेरोन जो थे, बट वो ना एक इन्होंने रूस का जो था एक बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल था। ये अपनी टेक्नोलॉजीज जो थी इनकी, जो नाजीज की होती थी, ये बाहर नहीं जाने देते थे। तो ओनली आफ्टर द डिफीट ऑफ एडोल्फ हिटलर इन 1941-42 के अराउंड जब हुआ है, तो तब कम्युनिस्ट पार्टीज आ गई थी रशिया के बीच में। तो कई जो प्रोमिनेंट बॉडी बिल्डर्स भी थे, उन्होंने रशिया छोड़ के अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर दिया, बिकॉज अमेरिका वॉज अ न्यू वर्ल्ड। वहां पे आवाज सुनी जाती थी, देयर वाज नो सेपरेशन, सो लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू यूएस। और जैसे आपने पूछा है कि इनकी इजाद कहाँ से हुए थे ये, तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पे डॉक्टर जॉन जिगलर थे
जो कि आपकी अमेरिका की ओलंपिक टीम के मैनेजर थे। तो उनको ये पता था कि रशिया जो है ना, जितनी भी अपनी कॉम्पैक्ट गेम्स हैं, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हो गई, रेसलिंग हो गई, पावर लिफ्टिंग होगी, वहां पे हर ओलंपिक्स के बीच में जो रशिया के एथलीट्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे। सो तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि हाउ कम हमारी अमेरिका, वी बीइंग सच ए गुड इकोनॉमी, स्टिल हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे जो रशिया कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ इनके पास एथलीट्स पहुंचे थे, तो जहां से जो दिस इज ऑल इन आर्कीव्स एंड सो ये सुना गया है कि उनके पास कुछ एथलीट्स ने आके बताया कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हमें कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, एंड दैट इज हाउ डॉक्टर जॉन जिगलर की नॉलेज में आया था कि एडोल्फ हिटलर ने अपने वहां पे टेस्टोस्टेरोन को इजाद किया था। तो डॉक्टर जॉन जिगलर ने भी अपने लेवल के ऊपर सीबा फार्मास्यूटिकल्स से उनके साथ मिलके इन्होंने 1958 में पहला एक ओरल एनाबॉलिक स्टेरॉइड लॉन्च किया था जिसका नाम था डायनाबॉल, जो आज की डेट पे भी बहुत ज्यादा अब्यूज होता है। So this was the starting of anabolic steroids in the world, and yeah, that was the start how it came around. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? देखो, जो वर्ड है ना इसका, एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये बेसिकली इनका काम क्या है कि बॉडी की परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं ना। तो व्हाट दे डू, अब आपका जो होता है एक आपके हर 11 मंथ्स के बाद आपकी टोटल बॉडी चेंज हो जाती है ना, एवरी सेल्स मल्टीप्लाइज एंड न्यू सेल्स आर, तभी तो कहते हैं कि इंसान की शख्सियत हर 11 महीने के बाद चेंज हो जाती है, ठीक है ना। किसी इंसान से घृणा मत करो, बिकॉज वो इंसान आपको 11 महीने के बाद टोटल चेंज भी मिल सकता है। सो 11 महीना कहते हैं। सो एनीवेज, हम जब बॉडी में जिस्म की बात भी करें तो हमारे मसल्स जो हैं वो एक दूसरे, वो जब बढ़ते हैं साइज में, एक तो नेचुरल, जब आप देखोगे बच्चा 11 12 13 साल की भी उम्र में आता है तो उसके बाद उसका शरीर फैलना शुरू होता है, धीरे धीरे 15 16 साल में उसके मुंह पे दाढ़ी आनी शुरू होती है ना। सो ये सारे के सारे नॉर्मल एनाबॉलिक, मैं भी आपको एक मेल चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे फेजेस आती हैं। धीरे धीरे हम हाइट गेन करते हैं लाइफ में, हमारा मसल क्वालिटी इंप्रूव होती है, दैट इज नॉर्मल, बिकॉज हमारा मसल एवरी डे एज आई एम टॉकिंग टू यू, हमारा कहीं ना कहीं सेलुलर लेवल के ऊपर हमारा मसल ग्रो कर रहा है। पर एक ना नॉर्मल फिनोमिनन होता है जिसके बीच में आपका एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मसल की ग्रोथ, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं ना, वो बननी शुरू होती हैं। स्टेरॉइड्स का क्या काम होता है, जो वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना, फ्रॉम योर डीएनए का रेप्लिकेट होता है आपका आरएनए से आपके वो राइबोसोम्स में जाके प्रोसेस होता है जिसमें आपके न्यू प्रोटीन के सेल्स बनने शुरू होते हैं। ये इस पूरे फिनोमिनन को, ठीक है ना, ये इसको तेज कर देता है। तो यानी कि आपकी जो मसल बिल्डिंग नॉर्मली जो आपकी हो रही थी, हम इसको एनहांस बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, बिकॉज आपका मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो तेज हो गया पहले से ना। सो दैट इज हाउ नॉर्मली यू, देखो इसमें एक चीज होती है कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देयर टू लेवल ऑफ बॉडी बिल्डिंग, वन इज जेनेटिक लेवल एंड वन इज नेचुरल लेवल। एक लेवल के ऊपर आप नेचुरल लेवल के इज दैट लेवल जिसके बीच में आपका जीन्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर मसल मास आप कैरी कर सकते हो, उससे ऊपर आपकी हिपोट्रोपी पॉसिबल नहीं है। एंड द डिफरेंट सेकेंड फेज इज व्हेन वी एनहांस द बॉडी बिल्डिंग, हम एनहांस करते हैं एक बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स डाल के, हम उस स्केलेटन के ऊपर, उन हड्डियों के ऊपर उतना ज्यादा मास चढ़ाते हैं जो नॉर्मली उसकी स्केलेटन अलाउ नहीं कर रहा था। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग, जिसके बीच में आप फोर्सफुली उस बॉडी के ऊपर और मसल जो है वो डालते हो, जो शायद नेचुरली वो नहीं होता उसकी बॉडी में। ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਆਪਾਂ ਪੁਟ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗੇ ਹੋਣਗੇ। डेफिनेटली गुरी, साइड इफेक्ट्स तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, और कई लोग आज की डेट में उन साइड इफेक्ट से जूझ भी रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप देखो कई तो अनरिपोर्टेड केसेस हैं, पीपल डू नॉट कंप्लेन अबाउट इट, और कुछ मैं कह सकता हूँ कि कुछ जेनेटिकली बहुत बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। बट देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली, जिनको बहुत ज्यादा उनकी बॉडी के बीच में डैमेजेस आने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन आज की डेट में आप देखो सो मेनी डेथ्स यू सी अमंग द बॉडी बिल्डर्स, जितनी डेथ्स हो रही है मेल्स की, फीमेल्स की, बिकनी एथलीट्स की, बॉडी बिल्डर्स तो हो ही रहे। सो डैमेजेस तो डेफिनेटली हैं बॉडी के बीच में, ठीक है ना, वो तो हम निगेट कर नहीं सकते, बिकॉज आपने एक बॉडी का
जो आपको एक नेचर से एक चीज मिली थी, आपने उसके साथ छेड़खानी की है, देन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहीं ना कहीं रिएक्शन तो फेस होंगी ना। अब नॉर्मली एक इंसान की बॉडी पे आप वो कितना भी प्रोटीन खिला दो उसको, ठीक है ना, अल्टीमेटली प्रोटीन यूरिया जरूर बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाएगा, पर उसकी मसल ग्रोथ नहीं करेगा। बिकॉज सेलुलर स्ट्रक्चर, उसका जो डीएनए से जो आपके आरएनए में कन्वर्जन जा रही है, और जो उसके पॉलीपेप्टाइड्स बन रही है, वो एक नॉर्मली एक उसके बॉडी में जेनेटिक ऑर्डर है जिसके हिसाब से वो सब कुछ चीजें तैयार हो रही हैं। तब जब हम उनको एनहांस करवाते हैं फोर्सफुली, उसका मसल और तैयार करवा रहे हैं, तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही ना बॉडी में। ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਯੋਗਰੇ ਸਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ हम्म। ਕੋਈ ਐਥਲੀਟ 30 ਡਾਇਨਾਮੋਲਸ ਵੀ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ, ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। देखो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एजुकेटर, कई मेरे पास क्लाइंट्स वैसे भी आते हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं हार्मोनल इफेक्ट्स आ गए होते हैं ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के। और व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्मोनल अदर देन द फिजिकल डैमेज, ठीक है ना, पहले मैं आपको फिजिकल डैमेजेस बता देता हूँ। फिजिकल डैमेजेस के बीच में सबसे पहले तो देखो, आपका जो दिल है, हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे पहले वो डैमेज होना शुरू होता है, ठीक है ना। देन इज व्हेनेवर यू स्टार्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स, आपका जो ब्लड है वो थिक होना शुरू हो जाएगा, और प्लस आपकी बॉडी के बीच में लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन आ जाती है। एंड वाटर रिटेंशन अराउंड द, यू कैन से, जितना भी आपका वेनस सप्लाई है, ब्लड का आर्टीरियल सप्लाई है, उसके अराउंड जब भी आपकी वाटर रिटेंशन होती है, तो आप कह लो कि आपकी वेसो कंस्ट्रिक्शन होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है। बिकॉज eventually blood has to reach all the organs, but due to so much water retention, that blood needs a lot of pressure. तो उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर स्ट्रेट अवे अब इंसान की, एथलीट की किडनीज के ऊपर लोड डालता है। सो टू ऑर्गन्स जो स्ट्रेट अवे लाइन ऑफ एक्शन में आते, फोर्स में आते हैं, इसमें जो डैमेज जिनके ऊपर आता है, दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑफ हार्ट एंड योर किडनीज, जो मोस्ट डैमेज होते हैं। ये तो थे आपके फिजिकल डैमेजेस। उसके साथ देखो, अगर दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व शुरू हो गए, तो उसके साथ साथ कई, अब सो मेनी पीपल आर टेकिंग पेप्टाइड्स, आज की डेट में आईजीएफ्स ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेनक्रियास भी इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। सो लॉट ऑफ थिंग, एज आई सेड कि यू स्टार्ट फिडलिंग, आप बॉडी के साथ छेड़खानी शुरू करते हो, तो कहीं ना कहीं डैमेजेस किसी न किसी एंगल पे आने शुरू हो जाते हैं। मानसिक संतुलन की अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन, अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंसीज जो बहुत ज्यादा हो रही है ਸਿੰਪਟਮ आजकल। ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। देखो, साइड इफेक्ट में सिम्टम्स तो आते हैं गुरी, सिम्टम्स आते हैं, पर कई लोग अपने टेस्ट भी तो नहीं ना करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। आप उनको बोल दो कि अपने ब्लड के कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं उन्होंने, तो दे से दे सर ये बहुत महंगे पड़ रहे हैं ना। तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच वी हियर कि सर टेस्ट छोड़ो, सब ठीक है, मेरे को पता सब ठीक चला मेरे अंदर, है ना। भाई तुम्हें कैसे पता तुम्हारे अंदर ठीक चल रहा है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो, परमानेंट डैमेजेस तो हो रहे हैं, ठीक है ना, परमानेंट डैमेजेस हो रहे हैं। जैसे आपने साइड इफेक्ट पूछे, साइड इफेक्ट में अब लगा लो, एक मेल बॉडी बिल्डर में अगर मैं बात करूं, मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रहा अभी, यू कैन आस्क मी लेटर, मैं आपको फीमेल बॉडी बिल्डिंग में ही बताऊंगा सबसे बड़े इमोशनल डैमेजेस क्या हो जाते हैं, जिनको पता नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है। वो कोचिंग लेनी शुरू करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं फीमेल्स के बीच में भी ख्वाब होता है बॉडी बनाने का। जैसे हमारी जरूरत है, हमें अच्छा लगता है पाउडर पी लेके आना, है ना, बड़े बड़े मसल्स बनाना, तो कई फीमेल्स की भी उनकी इच्छा होती है कि वो भी अपनी बॉडी को मॉफ करें। तो दैट इज बिल्कुल सही है, वो दे आर ऑल्सो राइट इन देयर ओन वे, दे ऑल्सो वांट टू बिकम गुड, दे वांट टू बिकम मस्कुलर। बट उस दौड़ में आके कभी ना कभी वो उन चीजों को कर बैठती हैं जो एक फीमेल बॉडी बिल्डर के लिए बिग नो होती है। नहीं, हम जब फीमेल बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो फीमेल बॉडी बिल्डिंग के बीच में उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का बहुत खास ध्यान रखना होता है, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि कभी भी हम फीमेल स्टेरॉइड्स के बीच में उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के साथ इंटरप्शन ना करें, बिकॉज अदरवाइज अराउंड लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, उनकी वोकल कॉर्ड जिनसे उनकी आवाज वगैरह मॉड्यूलेट हो रही होती है, वो चीजें, एंड लॉट ऑफ यू कैन से ग्रोथ ऑफ देयर ऑर्गन्स होनी शुरू हो जाती है, विच आर एक्चुअली अनवांटेड। अब साइड इफेक्ट आप मेरे से पूछ रहे थे मेल्स बॉडी बिल्डिंग के बीच में, तो दो ऑर्गन्स मैंने आपको बता ही दिए, और थर्ड होता है आपका मेंटल इक्विलिब्रियम।
तो आज के डेट में कई लोग आते हैं, दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डिप्रेशन। देखो इम्पोर्टेंसी तो एक तरफ रह गई, जो स्टेरॉइड्स लिए जा रहे हैं तो हाई लेवल ऑफ इम्पोर्टेंसीज तो आ रही हैं। इम्पोर्टेंसीज के चक्कर लेते हुए कई मैरिजेस ब्रेक डाउन हो रही हैं बिकॉज बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा, एंड ऐसे करते करते फैमिलीज तो टूट ही रही हैं, ठीक है ना। और साथ के साथ एक इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। मेरे पास डिप्रेशन के केसेस बहुत आते हैं आज की डेट में। सो ये सारे के ਸਾਰੇ कहीं ना कहीं ब्रो साइकिल्स के शिकार रहे हैं, ठीक है ना। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੇਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਕੋਹਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਬੋਲਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫੀਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਪਾਮਾइन। बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने। होता क्या है कि व्हेनेवर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर होते हो ना, तो आपने शुरुआत में आपका मूड बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो लॉट ऑफ डोपामाइन, जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो सिक्रीट हो रहे होते हैं। योर ब्लड प्रेशर इज, यू कैन सी योर ब्लड वर्क्स जैसे भी होंगे इनिशियली। आई अगेन रिपीट माय वर्ड, दिस वर्ड, whenever you start anabolic steroid, जब आप इंसान लेना शुरू करता है तो उसके ब्रेन में से कई हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। जब आप जिम में जाते हो, पंप करते हो, यू स्टार्ट फील वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ, है ना। सो अपार्ट फ्रॉम द सेलिब्रिटी स्टेटस, अगर हम साइड पे छोड़ दें तो मेंटल वाइब्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, है ना। तो जैसे ही इंसान स्टेरॉइड को छोड़ता है ना, तो एकदम से, जैसे मैंने कहा कि मेंटल लेवल के ऊपर भी आपका मेंटल इक्विलिब्रियम एथलीट का खराब होना शुरू होता है, बिकॉज दैट इज अ फेज व्हेन इन एकदम से डिप्रेशन की फेज आती है। योर टेस्टोस्टेरोन इज वन हार्मोन, जब आपने बॉडी को बूस्ट अप किया हुआ है तो आपके बॉडी हैप्पी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। पर द मोमेंट आप टेस्टोस्टेरोन को निकाल दो, आप किसी भी डिप्रेशन केसेस को देख लो जो एक्यूट डिप्रेशन में है, लोग घूम रहे हैं, उनके आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लो तो मोस्टली आप उनको वेरी वेरी लो टेस्टोस्टेरोन लेवल दिखेंगे। तो जैसे ही एथलीट का टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है तो क्या होता है, लेथार्जीनेस, डिप्रेशन, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना पब्लिक से, तो सारे के सारे सिम्टम्स। और सबसे बड़ा ब्रंट कौन बेयर करता है इस सारी चीज के बीच में, उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके यार दोस्त जो उनको चाहने वाले, प्यार करने वाले होते हैं, सबसे ज्यादा वो इस चीज के शिकार होते हैं। क्योंकि इंसान अकेला बीमार नहीं होता, वो पूरे परिवार को, पंजाबी कहना पूरा टब्बर बीमार हो जाता है बीमार के कारण चक्कर च ना, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਦੇਟ ਮੈਂਟਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਚਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਸੇਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?